ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಪೂಜಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ 2 ಕಡೆಯವರೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಗ್ಚಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. 2 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲದ 5ನೇ 1 ಭಾಗ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಡಲತೀರದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. 15 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಬಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ 11 ಮತಗಳು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ಮತ ಮತ್ತು 2 ದೇಶಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾಯಿತು. ವೀಟೋ ಚಲಾಯಿಸುವ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ನಿನ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಇಂದು ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೊಡಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ 126, ಕೇರಳದ 140 ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯ 30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ 234 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಹಂತದ 152 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 4ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮತದಾನದ ದಿನ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತಗಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದು ತನ್ನ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 6 ಸದಸ್ಯರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುನ್ನೋಟ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯ ಹೂರಣ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ 9:15ಕ್ಕೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಖಲೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಲೀಲುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳು ಸುಮಾರು 96% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 5 ಕೆಜಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಾಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 27 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 11 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 32 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 77 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 14 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 11 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶರಣಾಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಸಂದೀಪ್ ಬರ್ಗರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ನಾಯ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟಿಬಿಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 25ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ತೆಹ್ರಿಯಾ ವಸಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 5 ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಈ ತಿಂಗಳ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 19 ತಂಡಗಳು 52 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿಬಿಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮನು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಸರಿಸಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150.in ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ ಮತದಾನ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ.
आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की शर्त के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान भी सहमत, होर्मुज को सुरक्षित आवाजाही के लिए खोला। युद्ध विराम की घोषणा से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्र सरकार ने यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की और ISSF विश्व कप में निशानेबाज पलक और मुकेश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने की शर्त पर ईरान के साथ 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। ये घोषणा उनके द्वारा दी गई उस समय सीमा से ठीक पहले आई है जिसमें उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर भीषण हमले की चेतावनी दी थी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों को द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमत होना चाहिए। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और संघर्ष सुलझने के करीब है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद कर दिए जाते हैं तो वे युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। उन्होंने बताया कि 2 सप्ताह की अवधि के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। इस बीच ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की 10 सूत्रीय योजना को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कल रात राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते को पूरा न करने पर ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने इसके लिए आज सुबह 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया था। इस बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। शेयर बाजारों में भी उछाल आया है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 से नीचे गिर गई। करीब 16% की गिरावट के साथ ये $92 प्रति बैरल पर आ गया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज दोपहर नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। श्री रहमान की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की उम्मीद है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर आज वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। इस दौरान वे अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आपसी हित के मुद्दे शामिल हैं। विदेश सचिव क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज वित्तीय वर्ष 2026-27 की अपनी पहली बैठक में मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। गवर्नर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति सोमवार से ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और विकास अनुमानों जैसे प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम एशिया संकट से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका को देखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में मानक नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। सुरक्षित कल के साथ साथ NPS आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी
एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कल यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की। नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मौजूदा ढांचों को मान्यता दी जाएगी, वहीं आगामी निर्माण कार्य में नगर निगम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया। हमने आकर के अब उसको रेगुलेशन का जोड़ा है। वो रेगुलेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान में बना सके। एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से नया कंस्ट्रक्शन चाहे पूरा करना है, तोड़ के बनाना है अथवा अपने पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करना है, वो सब एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से ही करेंगे। दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 19 किलोग्राम क्षमता वाले 180 सिलेंडरों के स्थान पर 360 सिलेंडर आवंटित किए गए हैं। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि स्वास्थ्य से जुड़े और सरकारी संस्थानों, होटलों, रेस्तरां, ढाबों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में 19 किलोग्राम की क्षमता वाले 6000 से ज्यादा सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता है। इसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन की जमाखोरी न करें। वर्तमान में राज्य में 92,000 किलोलीटर पेट्रोल और 1,22,000 किलोलीटर डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। असम की 126, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। पुदुचेरी में कल सुचारू और सुरक्षित मतदान को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरक्षित रखने वाले स्ट्रांग रूम खोलने की प्रक्रिया आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, मोतीलाल नेहरू सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और टैगोर सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेज के स्ट्रांग रूम आज सुबह लगभग 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच खोल दिए गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी मतदान केंद्रों पर भेजी जा रही है। कल मशीनें सेक्टर अधिकारियों को सौंप दी जाएंगी। राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पुदुचेरी जिले में ही कुल 4116 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में 3000 से अधिक पुलिस कर्मी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां और कर्नाटक पुलिस की विशेष इकाई शामिल है। 137 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 155 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। केरलम में कल होने वाले चुनाव में पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतदान के दौरान पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। केरलम के सभी मतदान केंद्रों में ग्रीन प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और थर्मोकॉल की वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुटुंबश्री इकाइयों के माध्यम से स्टील और कांच के बर्तन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हरित कर्म सेना के सहयोग से एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले 3 हफ्तों से ग्रीन बटन अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिणाम स्वरूप राज्य भर में 8 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल केरलम में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान अपनाई गई हरित प्रोटोकॉल पहलों ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अमित कुमार त्यागी। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली हमारी श्रृंखला पीपुल्स पद्म के अंतर्गत हम समाज सेविका सुश्री SG सुशीला अम्मा से बातचीत करेंगे।
Children won't even know how to write the basic alphabets. She has brought them up. Then they have gone on to become doctors. They have gone on to become engineers. She has won the National Child Welfare Award in 1985. And then the Baba Sahib Ambedkar Handloom Award. And then for the Child Welfare, Central Social Welfare Board, she has taken 3 national awards. ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP द्वारा आयोजित 25वां अखिल भारतीय जल क्रीड़ा क्लस्टर आज उत्तराखंड के टिहरी जिले के वसाई में शुरू होने जा रहा है। ये 5 दिवसीय आयोजन इस महीने की 12 तारीख तक चलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर की 19 पुलिस टीमों के 440 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग सहित कुल 52 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिभागी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टिहरी झील में होने वाले आयोजन खेल के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। स्पेन में आयोजित ISSF विश्व कप में कल भारतीय निशानेबाज पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में दोनों ने कुल 487.7 अंक हासिल किए। विश्व कप में नेलावल्ली का ये पहला पदक रहा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात गुवाहाटी में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। लगातार बारिश की वजह से मैच 11 ओवर का कर दिया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 3 विकेट पर 150 रन बनाए, जबकि जवाब में मुंबई इंडियंस ने 9 विकेट खोकर 123 रन बनाए। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस से और ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। वाह विक्रम, ये ठाट बाट बोर्ड मीटिंग्स के चर्चे, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे लॉटरी नहीं राज, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री है। कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन हूँ। सुना है बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। पावर भी, प्रतिष्ठा भी और शानदार पैकेज भी। विस्तृत जानकारी के लिए लॉग इन करें www.icsi.edu पर। कॉर्पोरेट सेक्टर की भरे उड़ान, पाई रुतबा और नई पहचान। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी अखबारों ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के साथ ऐसे मुद्दों को सुर्खियों में जगह दी है जिनका संबंध देश की आंतरिक राजनीति और नई चुनौतियों से है। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, सभ्यता की अग्नि परीक्षा, ईरान ने चेताया रेड लाइन पार न करें। वहीं लोक सत्ता ने दिल्ली में 1511 अनधिकृत बस्तियों को नियमित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय को अपना पहला समाचार बनाया है। सीएम रेखा गुप्ता की पहल पर केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। अमर उजाला ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 45 लाख लोगों को राहत, अनधिकृत बस्तियां होंगी नियमित। पंजाब केसरी ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेयर की तस्वीर प्रकाशित की है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धमकियों का जाल। अखबार का कहना है कि देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और अन्य सरकारी सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बन गया है। पत्र याद दिलाता है कि हाल के वर्षों में ऐसी धमकियां बढ़ी हैं, इसीलिए सरकार और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है। देशबंधु की सुर्खी है, अब हवाई सफर होगा महंगा, एयर इंडिया ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। धन्यवाद फरहत। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की शर्त के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान भी सहमत, होर्मुज को सुरक्षित आवाजाही के लिए खोला। युद्ध विराम की घोषणा से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के साथ बातचीत करेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। केंद्र सरकार ने यथास्थिति के आधार पर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की और ISSF विश्व कप में निशानेबाज पलक और मुकेश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया है विश्व रिकॉर्ड। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।